Electric vehicle innovator Ather Energy, co-founded by Tarun Mehta and Swapnil Jain, were in Ahmedabad today to announce the launch of their company's IPO on April 28. The offering includes a fresh issue worth Rs 2,626 crore and an offer for sale of 1.1 crore shares. The price band is fixed at Rs 304 to Rs 321 per share, with a lot size of 46 shares. Eligible employees receive a 30 rupees discount per share. Prominent investors like Caladium Investment and NIIF2 are among the selling shareholders. The IPO closes on April 30th with plans to invest on both BSE and NSE. Report Bilkul Online. Good afternoon, everyone. On behalf of JM Financial and all the book running lead managers, I'd like to welcome you all to the broker meet for Ather Energy IPO. We are extremely privileged and honored to be a part of this landmark IPO. And I'd like to thank the entire Ather management team that we have over here for giving us the opportunity to lead this IPO. Before I move forward, I'd like to introduce the team that we have over here. We have Mr. Tarun Mehta, who's the co-founder and CEO. We have Mr. Swapnil Jain, who's the co-founder and CTO. Along with him, we also have Mr. Sohail Parekh, who's the CFO, and Mr. Navneet Pokhela, who's the CBO. Journey of Ather began in 2013 with the conceptualization of becoming a pioneer in the Indian electric two-wheeler market. The company has vertically integrated approach coupled with strong in-house research and development capabilities, which ensures a high degree of control over innovation, quality, and cost. Its scalable technology platform has supported rapid product development and efficient market launches. Moreover, the organization has been guided by experienced management team and supported by long-term investors who are firmly aligned with a robust corporate governance and sustainable value creation. I'd like to touch upon the deal specs over here. The price band is 304 to 321 per equity share. The total IPO size is 2,981 crores with a fresh issue of 2,626 crores and OFS of 355 at the upper price band. The anchor is scheduled for tomorrow, which is Friday, 25th April, and issue opens to the public on Monday, 28th April, and closes on Wednesday, 30th April. We've also received strong interest from well-renowned investors, which is a testimony to the robust and resilient business model built by the entire team at Ather over here. We firmly believe that the Ather will be at the forefront of ETW revolution in India. Without taking much time, I would now request Tarun to take you through what has been a spectacular journey for the company and their future growth strategies. Over to you. Thanks, Ajay. It's काफी ठंडी है हॉल में. Thank you everybody. Thanks for making time. So I am Tarun. Started the company along with Swapnil here 11 years ago. So our story actually began in IIT Madras. हम दोनों IIT Madras में students थे. We were classmates, batchmates थे. And हम लोग second year से एक energy company start करने का try कर रहे थे. So our passion of building in this space goes back a really long way. So 2009 से हम लोग एक दूसरे को Ather Energy बुला रहे हैं. And तब से physical products develop करने का try कर रहे हैं. Graduation हुआ, उसके बाद में we filed a patent on a battery pack design. And उस पर काम करने की काफ़ी इच्छा थी. So we went back to college, we went back to IIT Madras and हमने कुछ प्रोफेसर से बात करी और उन्हें कन्विंस किया कि यार हमें बैटरीज पे काम करना है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए. एंड उन्होंने हमें सपोर्ट किया नेक्स्ट एक साल तक. We were literally just researching out of IIT Madras. We were essentially two unemployed recently graduate students who had gone back to college to work out of a lab for the next 1 year. उस फेज में हमने बैटरीज बनाई, बैटरी पैक्स बनाए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए, चार्जर्स बनाए एंड वो सब चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक स्कूटर बनाया था. सो हमारा ओरिजिनल आइडिया स्कूटर बनाना था ही, हमारा ओरिजिनल आइडिया एक्चुअली बैटरी पैक बिजनेस बनाने का था. एंड उसको डेमो करने के लिए एक स्कूटर बना रहे थे. एंड एवरी टाइम हम लोग को बैटरी पैक का डेमो देते थे, हमें रियलाइज हुआ कि लोगों को स्कूटर ज़्यादा पसंद है. तो बाय द एंड ऑफ दैट ईयर 2013 वी डिसाइडेड कि यार एक्चुअल धंधा तो यहाँ पे स्कूटर बनाने का और पूरा व्हीकल बनाने का, ब्रांड बनाने का है.
एंड उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत. So we started Ather Energy. We incorporated that in IIT Madras in Chennai and meant it to be a EV scooter, EV business overall. 1 year later we moved to Bangalore and since then have grown a lot. हमारे दो बड़े बेट्स थे, अब बोल लीजिए दो बड़े डिसीजंस लिए हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया. पहला था कि वी विल इन्वेस्ट हेवीली इन R&D. ऑटोमोटिव में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सॉफ्टवेयर के रहते बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आने वाला है. ये हमें तब भी दिख रहा था क्योंकि तब टेस्ला ने अपना मॉडल एस जस्ट लॉन्च किया था. चाइना में बहुत सारी ईवी आने चालू हुए थे एंड हमें दिख रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आने वाला है हमारी इंडस्ट्री में. आप वेट नहीं कर सकते एज अ OEM. हम वेट नहीं कर सकते यार हमारा सप्लायर कब टेक्नोलॉजी बना के हमारे पास लाएगा, जब वो हमारे पास लेके आएगा तब हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे. आप इतना लंबा कार्यक्रम नहीं रन कर सकते. यू विल हैव टू टेक द लीड. आपको खुद टेक्नोलॉजी एंड R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आपको लाइक वी टेक अ लॉट ऑफ लाइक बहुत सारे ट्विटर कमेंट्स आता है या BYD देखो इतना आगे आ गया, ये आ गया, क्योंकि BYD टुडे हैज द लार्जेस्ट R&D इन द वर्ल्ड फॉर ऑटोमोटिव. BYD के पास 1 लाख इंजीनियर्स है. तो आई थिंक अगर हमें इंडिया में आगे बढ़ना है, ऑटोमोटिव में आगे जाना है, EV में लीड लेना है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में, हमें भी R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. हम वेट नहीं कर सकते यार बॉश कब जर्मनी से हमें लाके बैटरी की टेक्नोलॉजी देगा. तो हमने पहला ये डिसीजन लिया कि यार R&D में इन्वेस्ट करेंगे. टिपिकली स्टार्टअप्स R&D में लीड नहीं लेते हैं. टिपिकली स्टार्टअप्स मोर एप्लीकेशन लेयर पे खेलते हैं कि यार अगर कुछ बन गया है तो उसको फटाफट में इंप्लीमेंट कैसे करूँ. हमने अलग गेम खेला कि यार हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, सॉलिड इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट करेंगे. दूसरा हमने प्रोडक्ट पे बेट लिया. हमने डिसाइड किया कि यार स्कूटर्स को टिपिकली लोग ऐसे एक यूटिलिटी प्रोडक्ट की तरह देखते हैं. तो हर कंपनी यही सोचती है यार एक बेसिक प्रोडक्ट बनाओ, यू नो, जो आपका बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है. हमारा विचार था कि स्कूटर में जैसे मोटरसाइकिल्स में आज से 20 साल पहले डिस्ट्रप्शन हुआ एंड मोटरसाइकिल मार्केट पूरा प्रीमियमाइज हुआ. बजाज पल्सर आया, उसके बाद में अपाचे आया, उसके बाद इतने ब्रांड्स बने एंड पूरा मार्केट आगे बढ़ा. हमारे हिसाब से स्कूटर मार्केट में भी ऐसा कुछ सिमिलर होने वाला था. स्कूटर मार्केट एक सिंपल बेसिक फॉर्म नहीं रहेगा, ये प्रीमियमाइज होगा. एंड एज ए न्यू ब्रांड, एज अ प्योर इलेक्ट्रिक ब्रांड, हम ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, जो अपग्रेड वर्दी प्रोडक्ट्स के लिए नेचुरली लोगों के विचार में है. तो बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ और R&D में इन्वेस्ट करो. दीज वर आर 2 बिग बेट्स. लास्ट 11 साल में हमने ब्रॉडली इन पे ही काम किया है. We spent the first few years of our business getting our platform right. Core vehicle के platforms, vehicle platform, battery, charging, software, ये सब बनाने में. And एक बढ़िया upgrade worthy product, एक aspirational product, एक average scooter buyer उसको देख के बोले यार मुझे लाइफ में ये खरीदना है, ऐसा product बनाने में हमने इन्वेस्ट किया. Ather 450 was that kind of a product. 2018 में लॉन्च हुआ एंड इस प्रोडक्ट पे हमारा फ्रैंकली पूरा Ather ब्रांड इस प्रोडक्ट के कारण बना है. जो हमारा अवेयरनेस आया, जो कस्टमर के माइंड में एस्पिरेशन बना, जो कस्टमर के माइंड में एक्साइटमेंट आया Ather के बारे में, वो इस प्रोडक्ट के कारण आया. प्रोडक्ट बहुत बढ़िया से लैंड हुआ. उसके बाद में हमने नेक्स्ट 3-4 साल स्पेंड किए इसकी ऑपरेशन सेटअप करने में, क्योंकि याद है कि हम लोग पायनियर्स थे. जब हमने इस पर बिजनेस स्टार्ट किया था तब इंडिया में EV बिजनेसेस वर बेसिकली एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस. आप चाइना से इम्पोर्ट करते हो, उस पर स्टिकर लगाते हो और उसको इंडिया में बेचते हो. Ather ने पहली बार इतना लीप लेके एक्चुअल इंडिया में R&D करके IP क्रिएट करके प्रोडक्ट फंडामेंटली बनाया. तो पूरा उसके पीछे एक सप्लाई चेन लगाना, मैन्युफैक्चरिंग लगाना, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर सही करना, उसका सही क्वालिटी क्रैक करना, इंडिया में एक पूरा ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म फ्रॉम स्क्रैच बनाना विदाउट एनी इंटरनेशनल JV, विदाउट एनी फॉरेन सपोर्ट, विदाउट एनी MNC पार्टनर, एक बहुत बड़ा लीप था. तो वी स्पेंड द नेक्स्ट 2 years getting those pieces really right.